So today we had to study about the comparative public administration. As far as comparative public administration is concerned, comparative approach to the study of public administration, we had to study about this. And as far as this very approach is concerned, the credit for this very approach goes to American political scientists, and in particular, the incredible contribution has been on the part of Fred Riggs. And as far as this comparative public administration is concerned, or comparative approach to the public administration is concerned, comparative एडमिनिस्ट्रेशन या कंपैरेटिव अप्रोच जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, इसको कहा जाता है फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन पोस्ट वार पीरियड. दैट मीन्स राइट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड जो बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है पोस्ट वार पीरियड में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, वो यही कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में हुई है. और जो ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे जो डिसिप्लिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो और ज़्यादा उसमें जो है स्कोप वो बढ़ गया. और जहां तक बात है इस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ मोर साइंटिफिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसका जो एम रहा है वो यही रहा है, टू डेवलप द मोर साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे? बाय बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, to enhance the scope of public administration, to give it a more scientific look by strengthening the theory, by building a new theory of public administration. और जहां तक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जब इसमें वर्ड कंपैरेटिव आता है, दैट मींस देयर इज कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन. पहले बात होती थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन अब बात हो रही है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. दैट मींस जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, you were sticking to one particular system, you were limited to one particular system. आप उस सिस्टम को आइसोलेशन में स्टडी करते थे, आप उस सिस्टम के बाहर नहीं आते थे. बट when there is comparative public administration, that means you are making comparisons. You are not studying a system in isolation, but you are taking other things also into the consideration. For example, you are comparing the administrative setups of America versus administrative setup of Canada. You are comparing the administrative setup of a developed country, global northern country, versus the administrative setup of a global south country, Afro-Asian country versus Western country. So when you are making comparisons of the administrative systems, that is comparative. That is comparative. तो हम कह सकते हैं जो comparative administration है या comparative approach to public administration है या comparative public administration है, it is one of the branch of public administration. It is one of the branch of public administration. Lekin as an approach, we have to study it as an approach yet. So as an approach, it is considering the working of the government in different socio-cultural and economic settings. तो comparative public administration को जब हम as an approach देखेंगे, that means it इस approach को जब हम as an approach लेते हैं comparative public administration को, that means we are considering the working of governments in different socio-cultural and economic setups, in different ecological systems, in different environments, So as an approach, we are considering the working of governments in different socio-economic and cultural settings. और जहां तक administrative systems को in different environmental settings में study करना, that means it is covering a wide variety of activities. It is covering a wide variety of activities. And we can define it as, हम इसको आगे define करेंगे, so we can define it as the study of administrative systems in a comparative way. The study of administrative systems in a comparative way, or the study of public administrations of different countries. Study of public administration of different countries, or study of administrative setups in a comparative way. और जहां तक फादर है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो फ्रेड रिग्स है. Fredericks is the father of comparative public administration. और जहां तक comparative public administration की बात है, comparative public administration को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो comparative public administration का जो फोकस रहता है, that means comparative public administration stands for cross-cultural and cross-national public administration. Cross-cultural and cross-national public administration. Cross मतलब यहाँ पर जब ऊपर आपने देखा, जब हम पढ़ रहे थे, इसमें जो कंपैरेटिव है, दैट मीन्स हम मवाजना करते हैं, वी आर मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन द टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एट लीस्ट.
At least we are making the comparison of two different administrative systems, Afro versus American, Asian versus American, और नॉर्दर्न कंट्री वर्सेस साउदर्न कंट्री, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, दैट मीन्स जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट स्टैंड्स फॉर क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम एक दूसरे के कल्चर इनका क्रॉस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दूसरा, कल्चर के साथ साथ हम इनकी नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, इनका भी हम क्रॉस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर क्रॉस कल्चरल एज वेल एज क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and it is having two basic motivational concerns. Two basic motivational concerns होते हैं यहाँ पे. For example, one is theory building and another is administrative problems of developing countries. तो एक तो आपने theory building करनी है और दूसरा आपने ये देखना है, दो motivational concerns जो है, one is to build a theory, another is to look the problem is in administration of the third world countries. तो third world countries की जो administration में जो problems है वो क्या है? तो दो मोटिवेशनल कंसर्न्स आते हैं जब हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्रॉस कल्चरल स्टडी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, या क्रॉस कल्चरल के साथ साथ हम क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स का भी कंपैरिजन करते हैं। लेकिन इसके लिए दो मोटिवेशनल कंसर्न्स रहते हैं। वन ये, हाउ टू बिल्ड अ थ्योरी, अनदर टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और जहां तक बहुत सारे एक्सपोनेंट्स रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें से एक एक्सपोनेंट है, मेन एक्सपोनेंट तो इसका फ्रेडरिक्स है, वो इसका फादर भी रहा है फॉर अ डिकेड। लेकिन जो फेरल हीडे इज वन ऑफ इट्स एक्सपोनेंट अलॉन्ग विद रिग्स एंड अदर्स। फेरल हीडे डिस्क्राइब्स द पीरियड ऑफ लेट 60s, क्योंकि जो उरूज पे रही कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये उरूज पे रही 1962 से 1970 तक, या 1962 से 1973 तक। तो उरूज पे जब ये थी 1962 के बाद, अर्ली 60s के बाद, जब इसका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उरूज था, टॉप लेवल एपेक्स पे थी, तब फेरल हीडी ने इसके बारे में क्या बोला था? द पीरियड ऑफ 1962 जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया, पीरियड आफ्टर 1962 या आफ्टर 1960s, हम कह सकते हैं डिकेड ऑफ 60s एंड 70s, तो जो 10 साल 60 और 70 के बीच रहे, इस पीरियड को फेरल हीडी ने क्या बोला? हीडे, heyday, heyday of the comparative administrative movement, heyday of the comparative administrative movement। तो फेरल हीडे ने इसको heyday बोला है of the comparative administrative movement। What this heyday stands for? It stands for unanimous success, it stands for great success, we can call it an incredible achievement, you can call it an incredible achievement। तो इस incredible achievement, इस unanimous success को, इस great success को, जो इसका स्कोप बढ़ गया कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको फेरल हीडे ने बोला इट इज द ग्रेट सक्सेस ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट का ही कि ये ग्रेट सक्सेस है 1960 से लेके 1970 तक। और जहां तक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम स्टडी करते हैं, बिफोर गोइंग डीप इन इट, वी मस्ट नो व्हाट ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर। तो ऑब्जर्व किया था निकोलस हेनरी ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो डिफरेंस बताई बिटवीन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या ट्रेडिशनल को हम अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। एज यू नो, अगर आपको याद होगा, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वुडरो विल्सन, एंड क्रेडिट गोज टू हिम टू स्टार्ट दिस वेरी सब्जेक्ट। और सबसे पहले ये इमर्ज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1887 में, उसका जो आर्टिकल आया था, तो उसकी वजह से वहां पर जो स्कोप इंक्रीज हुआ था, एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। दैट्स व्हाई निकोलस हेनरी ने क्या कहा है, he cited out the differences between traditional public administration and comparative public administration in order to get more clear picture of the comparative public administration। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलो, उन्होंने ट्रेडिशनल की जगह अमेरिकन भी यूज की है, बिकॉज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दैट बिगेन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, दैट वाज कल्चर बाउंड। The traditional public administration
American public administration was culture bound. That means ethnocentric. That means ethnocentric. Ethnocentric means studying the culture of one country in isolation, studying of the cultures of a country within it. एक कंट्री के कल्चर्स को आप स्टडी करते हो, आप इसका किसी के साथ मुवाजना नहीं करते हो, कंपैरिजन नहीं करते हो. दैट इज कल्चर बाउंड, or we can call it ethnocentric. We can call it ethnocentric. But as far as comparative public administration is concerned, आपने अभी सुना, there is cross-cultural study. There is cross-cultural study. We are studying the culture of Malaysia as compared to the culture of Turkey. We are studying the culture of United States of America as compared to that of Japan. So we are doing a cultural study here. That is in comparative public administration. That is in comparative public administration. तो ट्रेडिशनल में क्या आता है, वो कल्चर बाउंड होती है, दैट मीन्स एथनोसेंट्रिक होती है. और जो मॉडर्न ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कल्चर बाउंड नहीं है, ये एथनोसेंट्रिक नहीं है, बल्कि ये क्रॉस कल्चरल है. दूसरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, दैट वाज practitioner oriented. That was practitioner oriented and involves the real world. Involves the real world. Practitioner oriented. Public administration में गुड्स की छोड़ो बात, वो इकोनॉमिक्स की बात है. यहाँ सर्विसेज की बात आती है. To serve the public, to serve the public. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आप प्रैक्टिकल काम करते थे. तो यहाँ पर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या थे, प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड थी, और इसमें रियल वर्ल्ड इन्वॉल्व होता था. बट एज फार एज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ थ्योरी. तो एक तो इसका काम रहता है थ्योरी बिल्डिंग, एंड आल्सो सीक्स नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. सीक्स नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज in order to find out the problems in the administrative setups of the third world countries. तो जो इसमें आप रिसर्च भी है, मगर मतलब जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक तो हम उसमें एक कल्चर स्टडी करते थे, और कंपैरेटिव में हम डिफरेंट कल्चर्स का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. दूसरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल थी, वो प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड थी, प्रैक्टिस ओरिएंटेड थी, रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल होता था. प्रैक्टिकल मतलब टू सर्व द पब्लिक, टू सर्व द पब्लिक. यहाँ पर कंपैरेटिव में आप क्या करते हो, यू आर मेकिंग comparisons in order to build a theory, find out the problems in the administrative setups of the third world countries, and in order to sort out those very problems, and also seek knowledge for the sake of knowledge, to build a new theory of knowledge, to do research, to find out the problems and their solutions, and as far as these very problems are concerned, problems in particular to the administrative setups of which countries, third world countries. तो ये दो चीजें हैं जो निकोलस हेनरी जो हैं वो कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. और जहां तक सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, व्हाइल हाइलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्रेडरिक्स है, जो इसका फादर है, इसका मेन फाउंडर जो रहा है फ्रेडरिक्स, ही asserted दैट अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंसिडर ये ना करें इट इज ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन, बस इसको ये कंसिडर करें अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी व्यूड एज अ सब फील्ड. ये एक सब फील्ड है, एक सब टाइप है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्लोबल इन स्कोप. इट इज ग्लोबल इन स्कोप. तो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स इज ग्लोबल इन स्कोप, दैट मीन्स अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is one of its subtype, one of its subsystem. And the new paradigm for public administration according to Riggs is should be comparative, that is global. तो जब comparative की बात आती है, जब पहले public administration की बात होती थी, तो according to Fredericks अमेरिकन public administration एक सब सिस्टम था. लेकिन अब रिग्स क्या कहता है, जो न्यू शिफ्ट हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, किससे ये न्यू शिफ्ट हुई है, नया जो डिसिप्लिन आया है, दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कंपैरेटिव public administration should be viewed as global. It should be viewed as global because it is comparative. We are doing the comparative study here. तो comparative public administration जो है, it is global. और जो American public administration है, that is one of the subtypes, one of the subfields of public administration. और जहां तक बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक ये जो चीज आई है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनता है. And the most important and single contribution to the growth of comparative public administration is this very formation of comparative administrative group.
फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, इसको हम एब्रिविएशन में बोलते हैं, जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 148 है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, केज। केज स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल in Indian constitution. But as far as CAG and public administration is concerned, that stands for comparative administrative group. Comparative administrative group, it was established in 1960, 1960 में comparative administrative group वजूद में आ जाता है as a committee for American Society for Public Administration, as a committee of American Society for Public Administration. तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप 1960 में आता है एज अ कमिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एब्रिविएट कर सकते हैं अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एब्रिविएट कर सकते हैं ASPA, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ASPA, that is founded way back in 1939। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर थी 1887 से या 1880 से, लेकिन जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज फाउंडेड वे बैक इन 1939। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कब आता है? ये भी अमेरिका में आता है, बट इन 1960। एंड द मेन स्कॉलर्स, इमिनेंट स्कॉलर्स related with comparative administrative group were the eminent scholars associated with comparative administrative group include, सबसे पहले इसका जो बानी है, एक्सपोनेंट है मेन, वो है फ्रेडरिक्स, अल्फ्रेड डायमंड, फेरल हेडी, विलियम सेफिन, अदर्स। तो बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स हैं जिनके आपने नाम याद रखने हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर आपने एक नाम याद रखना है, दैट इज फ्रेडरिक्स, बिकॉज he was its founder and he was its father। तो जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रेडरिक्स इज अ मेजर एक्सपोनेंट ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये वाला अप्रोच है, कंपैरेटिव अप्रोच, इसका जो मेजर एक्सपोनेंट है वो है फ्रेडरिक्स। ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो इसका चेयरमैन भी रहा है फॉर अ डिकेड। और ये वही डिकेड है जिसको फेरल हेडी ने बोला था, हिडे ग्रेट सक्सेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेडरिक्स जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडर भी रहता है, इसके साथ साथ फाउंडर रहने के साथ साथ ही वाज द चेयरमैन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, CAG, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का वो चेयरमैन रहा फ्रॉम 1960 to 1970 फॉर अ डिकेड। दैट मींस फॉर अ डिकेड वो इसका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का फ्रेडरिक्स चेयरमैन भी रहा है, इसका फादर भी रहा है, एक डिकेड के लिए वो चेयरमैन भी रहा है, और वो चेयरमैन रहा है इसका 1960 to 1970। और 1970 के बाद ही वाज सक्सीडेड बाय रिचर्ड गैबल। और जहां तक कंपोजिशन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की बात है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ना कंपैरेटिव अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, रिग्स ने ऑब्जर्व किया था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ स्कॉलर्स, इसमें ज्यादातर स्कॉलर्स है। और ये कौन से स्कॉलर्स है? हु हैड सर्व्ड ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन, जो टेक्निकल कोऑपरेशन पे काम कर रहे थे। टेक्निकल कोऑपरेशन के जो मिशंस थे दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, इन पर्टिकुलर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो टेक्निकल कोऑपरेशन की टीम्स थे, उनमें जो स्कॉलर्स थे वही कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में। और जहां तक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मैंने आपको बताया था कि फेरल हीडी ने 1960 के बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, इसको उन्होंने बोला था इनक्रेडिबल सक्सेस इन दिस वेरी फील्ड। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज में जो रूज पे रही सक्सेस वो 1960s के दौरान रही। इन पर्टिकुलर मैंने 1962 क्यों बोला था, बिकॉज नाउ यू विल गेट इट। द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट गॉट रियल इम्पीटस इन 1962, इट गॉट ग्रेट बूस्ट in 1962 when this comparative administrative group received the financial support from Ford Foundation। जो Ford Foundation है, उन्होंने ऐलान किया था 1962 में कि हम कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में जो स्कॉलर्स है जिस पे वो काम कर रहे हैं, मोस्टली अराउंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एफ्रिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अराउंड वो काम करते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में ये टेक्निकल कोऑपरेशन पे स्कॉलर्स जो हैं, इनको फोर्ड फाउंडेशन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस का ऐलान किया था 1962 में। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट 1962 में CAG को
एक रियल इम्पीटस, एक ग्रेट बूस्ट मिला था फ्रॉम फॉर्ड फाउंडेशन एज इट प्रोवाइडेड इट फाइनेंशियल सपोर्ट। और जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, इट डेवलप्ड अ प्रोग्राम विद 3 ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में, जो स्कॉलर्स थे जो स्टडी कर रहे थे प्रॉब्लम्स अराउंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे तीन ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। टू एनकरेज रिसर्च एंड टीचिंग इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एक तो एनकरेज करना है रिसर्च, और दूसरा हमने इसमें एनकरेज टीचिंग भी करनी है, और तीसरा हमने जो इसमें करना है टू कंट्रीब्यूट टू मोर effective public policy formulation in the field of development administration। एक efficient public policy formulation होनी चाहिए in the field of development administration। तो ये 3 चीजें इन्होंने अपने aims, अपने goals, अपने objectives रखे थे। To encourage teaching in administration, to encourage research in administration, to contribute more effective public policy formulation। more effective public policy formulation होनी चाहिए जहां तक एक development administration की बात है। तो ये 3 objectives, 3 goals रखे थे। ये 3 गोल्स रखे थे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप आफ्टर रिसीविंग द फाइनेंशियल सपोर्ट इन 1962 फ्रॉम फॉर्ड फाउंडेशन। And as far as purposes of comparative public administration are concerned, Frederick's जो है, he stated that the purpose of comparative public administration जो है वो combination है। तो purposes जो comparative public administration के हैं, these are comparative because it is a combination of, पहले तो इसका नाम ही है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके पर्पसेस क्या है? इसके पर्पसेस जो है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न्स। एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न। नॉर्मेटिव में क्या होता था? प्लेटो की तरह इसमें वो बातें होती थी, व्हाट आर टू बी, व्हाट शुड बी। और जब हम एम्पिरिकल की बात करते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज की बात करते हैं, दैट डील्स विद व्हाट इज। रियल में आपके पास क्या है? दैट इज एम्पिरिकल। ये कैसा होना चाहिए? दैट इज नॉर्मेटिव। तो जो पर्पस रहा है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स ने स्टेट किया, द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न्स। अकॉर्डिंग टू हिम जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हैज फॉलोइंग 4 पर्पसेस। तो इसके 4 पर्पसेस है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स देयर आर 4 पर्पसेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, to learn the distinctive features of a particular system or cluster of system। आपने स्पेशल फीचर्स देखने हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में और क्लस्टर ऑफ सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स और एक सिस्टम में आपने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने हैं, कुछ स्पेसिफिक और डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने हैं इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और क्लस्टर ऑफ सिस्टम्स। नंबर 1 एंड नंबर 2, to explain the factors, आपने उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है responsible for क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल डिफरेंसेस इन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर में जब आप क्रॉस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप क्रॉस स्टडी करते थे कल्चर एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, तब वहां पर आप जो फैक्टर्स आपको रेस्पॉन्सिबल लगेंगे फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, तो you have to explain the factors responsible for cross-cultural and cross-national differences in bureaucratic behavior। तो जो फैक्टर्स आपस में डिफर हो रहे हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है जब आप क्रॉस कल्चरल स्टडी करते हो, क्रॉस नेशनल स्टडी करते हो। तो नंबर 1 पर्पस ये रहता है स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम या क्लस्टर ऑफ सिस्टम्स आपने देखने हैं। नंबर 2 आपने एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंसेस जो क्रॉस कल्चरल स्टडी या क्रॉस नेशनल स्टडी की वजह से आती हैं, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर की वजह से वो डिफरेंसेस क्या है। नंबर 3, अब कुछ फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यू हैव टू एग्जामिन the causes for the success or failure of particular administrative features in particular system। एक particular administrative system में एक particular feature जो है उसकी वजह से कौन सी वहां पर सक्सेस मिल रही है, और दूसरे साइड से उसकी वजह से अगर कोई फेलियर हो रहा है तो वो क्या है। यू हैव टू स्टडी बोथ साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
वाल के आगे भी वाल के पीछे भी क्या है, एक फीचर से कौन सा फर्क पड़ता है, कामयाबी किस लेवल तक पहुंचती है और नाकामी किस हद तक वहां पर होती है। टू एग्जामिन द causes for success and failure of a particular administrative features in a particular administrative system, in a particular administrative system। तो ये तीसरा फीचर रहता है, तीसरा पर्पस रहता है। एंड द लास्ट पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कौन सी स्ट्रेटजीज है, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। तो ये 4 पर्पसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स। these were the 4 purposes of comparative public administration। तो जहां तक बात है सोर्सेज या काजेस की that resulted in the rise and growth of comparative public administration, वो क्या है? कुछ फैक्टर्स है, कुछ रीजंस है जिनकी वजह से राइज एंड ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल जो रिविजनिस्ट मूवमेंट हुए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को रिप्लेस किया बिहेवियरल अप्रोच ने, सिस्टम अप्रोच ने। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जगह नए अप्रोचेस को लेना है, उनको बोला जाता है रिविजनिस्ट मूवमेंट। रिविजनिस्ट मूवमेंट वो एक रीजन बना। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वे आर फोकसिंग ऑन मॉडर्न अप्रोचेस, वो भी एक रीजन बना कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रोथ में। नंबर 2, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे उनसे डिससेटिस्फैक्शन ज्यादातर मिली बिकॉज दे वर कल्चर बाउंड, दे वर स्टडीइंग द इंस्टीट्यूशंस इन आइसोलेशन। वो भी एक रीजन था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजूद में आने का। नंबर 3, exposure of American scholars and administrators to the new features of administrative systems। एक्सपोजर जो अमेरिकन स्कॉलर्स का हुआ है, जो स्टडी कर रहे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पोस्ट वार पीरियड में, जो उनका एक्सपोजर हुआ है जब उन्होंने स्टडी करते हुए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नए नए फीचर्स देखे, उसकी वजह से भी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव को बूस्ट मिला। emergence of newly independent countries after World War II, जो लिबरेशन और इंडिपेंडेंस मिली है 1940s के अराउंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, चाहे वो एफ्रो कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो या लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, उसकी वजह से भी जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ग्रोथ राइज हुआ है। इसके अलावा जो फॉरेन एड मिला है कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो फॉरेन एड मिला है यूएन के बनने के बाद या यूएन के बनने के बगैर, जो अमेरिकन फॉरेन एड प्रोग्राम्स थे in order to strengthen or rebuild political and administrative systems of the third world countries, वो जो फॉरेन एड्स मिले थे जिसकी वजह से नए डेवलपिंग कंट्रीज एमर्ज हुई थी, वो भी एक रीजन बन जाता है राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसके अलावा जो बिहेवियरल अप्रोच आ गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मॉडर्न अप्रोचेस के साथ साथ उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच इटसेल्फ इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच दैट आल्सो बूस्टेड द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक ट्रेंड्स की बात है, फ्रेडरिक्स ने जो 3 चीजें महसूस किए, ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग रिसर्च ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो फ्रेडरिक्स है उन्होंने 3 चीजें देखी। नंबर 1, जो मैंने अभी बताया, जब हम पर्पसेस की बात कर रहे थे तब वहाँ एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव स्टडी आती थी। तो एम्पिरिकल में होता था रियल में क्या है, रियलिस्टिक वर्ल्ड है, यानी एरिस्टोटल की बात होती है। और जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो वो प्लेटो को चला जाता है। तो इसी तरह जो 3 ट्रेंड्स देखे हैं फ्रेडरिक्स ने स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये है शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टडीज टू एम्पिरिकल स्टडीज। शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टडीज टू एम्पिरिकल स्टडीज मतलब अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट बी, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इससे शिफ्ट हुआ है टू एम्पिरिकल, व्हाट इज। तो ये एक ट्रेंड है जो देखने को मिला कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स। अ शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टडीज टू एम्पिरिकल स्टडीज, अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियोग्राफिक स्टडीज टू नोमोथेटिक स्टडीज। आइडियोग्राफिक क्या है तो नोमोथेटिक क्या है? आइडियोग्राफिक इज व्हेन वी आर स्टडीइंग वन नेशन, व्हेन वी आर स्टडीइंग अ नेशन इन आइसोलेशन, व्हेन वी आर स्टडीइंग एन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन, तो ये होता है आइडियोग्राफिक स्टडीज। तो शिफ्ट यहाँ पर हुआ है आइडियोग्राफिक स्टडीज to nomothetic studies. That nomothetic studies involves universal study. When we are comparing the nationals, when we are comparing the nations of the world, तो वो nomothetic study होती है। तो दूसरा शिफ्ट हुआ है आइडियोग्राफिक स्टडीज से nomothetic स्टडीज में, मतलब आइसोलेशन से कलेक्टिविज्म। नंबर 3, शिफ्ट फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल स्टडीज टू इकोलॉजिकल स्टडीज। आप एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप को देखते थे लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप नहीं देखते थे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप
नहीं देखते थे, आइसोलेशन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव को स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ है नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल स्टडीज में, दैट मीन्स आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखते हो इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये वो 3 चीजें हैं, 3 ट्रेंड्स है जो ऑब्जर्व किए थे फ्रेडरिक्स ने during the study of comparative public administration. Thus, according to Frederick's, comparative public administration is empirical, it is nomothetic, and it is ecological. It is ecological क्योंकि शिफ्ट्स हुए हैं नॉर्मेटिव से एम्पेरिकल, हाइड्रोग्राफिक से नोमोथेटिक और नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल। तो हम कह सकते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू रिक्स इज एम्पेरिकल, नोमोथेटिक एंड इकोलॉजिकल। तो बाकी इसमें कंसेप्चुअल अप्रोचेस आ गए, चाहे वो जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, जनरल सिस्टम अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। इन सभी अप्रोचेस को देखते हुए अब जो भी अप्रोचेस है टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल और यूजफुल माना गया दैट वाज जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच था मैक्स वेबर का, that was considered most influential as well as most useful approach, most influential and most useful approach. Even in 1964 itself, जो डिवाइट वेल्डो है अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, 1964 में डिवाइट वेल्डो ने क्या कहा था? डिवाइट वेल्डो itself said in 1964 found the bureaucratic model useful, stimulating and provocative. उन्होंने खुद ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को, जिसको एक्सेप्ट किया गया था, जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड यूजफुल। इवन 1964 में डिवाइट वेल्डो जो अमेरिकन है उन्होंने खुद कहा था कि मोस्ट यूजफुल मॉडल है, मोस्ट यूजफुल मॉडल, मोस्ट स्टिमुलेटिंग मॉडल इज दिस वेरी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। और इस मॉडल को कंसिडर किया गया एज द पैराडिम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज द पैराडिम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां तक ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैराडिम रहा है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, लेकिन साथ ही जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी इसका धीरे धीरे मैंने आपको बोला था हेडे एक ग्रेट सक्सेस रही थी अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी 1960 से 70 के बीच, लेकिन 1970 के दौरान बिगिनिंग में फॉल हुआ, इसके स्कोप में, इसके एवोल्यूशन में दरारें पड़ गई। तो क्या हुआ, इसका जो एमरजेंस थी, राइज हो रही थी, ग्रोथ हो राइज हो रहा था, वो फॉल हो गया, वो फॉल हो गया, मतलब डिक्लाइन होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। अभी डिक्लाइन क्यों हो रही थी? द बिगिनिंग ऑफ 1970s saw the decline of comparative public administration. Why? In 1971 द फोर्ड फाउंडेशन जो थी, जिन्होंने 1962 में फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान किया था, इन 1971 दिस वेरी फोर्ड फाउंडेशन टर्मिनेटेड दिस वेरी फाइनेंशियल सपोर्ट टू केज। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को 1971 में फोर्ड फाउंडेशन ने फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया। तो 1973 में क्या होता है, ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है इटसेल्फ वाज डिसबैंडेड, ये खुद खत्म हो गया and was merged with the International Committee of the American Society, International Community of the American Society. तो ये डिसबैंड हुआ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप और ये मर्ज हुई इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मर्ज होती है। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, तो फॉर्म अ न्यू सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, SICA, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1971 में फोर्ड फाउंडेशन केज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट रोकती है, 1973 में केज डिसबैंड होती है और मर्ज होती है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी के साथ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये नया सेक्शन बनाते हैं, दैट इज नोन एज सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सीका, SICA, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये सीका का जर्नल रहता है, मेजर जर्नल जो इसका था, द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो जर्नल था, क्योंकि इसका अब डिक्लाइन हो रहा था 1971 के बाद ये ग्रोथ, तो इसका जो जर्नल था, जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो 1970 के बाद पब्लिश ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल हो रहा था, डिक्लाइन हो रही थी। तो जिसका जर्नल जो था, जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या हो रहा था, वो अब पब्लिश ही नहीं हो रहा था 1974 के बाद। 5 साल 1969 के बाद 1974 तक वो पब्लिश होता रहा, तो 5 साल तक वो पब्लिश होता रहा, लेकिन 1974 के बाद वो पब्लिश नहीं हुआ। इट्स लेगेसीज वेर अब्सॉर्ब्ड इनटू लार्ज फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका भी अब स्कोप खत्म हो रहा था। और जो इसके एडिटर रहे हैं, चीफ एडिटर जो इसके रहे हैं जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के, पीटर सवेज ने
खुद ये देखा, खुद ये ऑब्जर्व किया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड विद नो पैराडिग्म ऑफ इट्स ओन एंड डेवलप्ड वन। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अपना पैराडिग्म नहीं था, कोई अपना पैराडिग्म नहीं था। तो 1970s के बिगिनिंग में इसका जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल हो रहा था, वो डाउनफॉल हो रहा था। और लेकिन साथ ही साथ इसमें 1980s जो आ गई, तो 1970s की जो डिकेड थी 80s तक, उसमें इसका डाउनफॉल रहा, लेकिन 1980s में इसमें डिक्लाइन के बाद रिवाइवल देखने को मिला, रिवाइवल देखने को मिला। सबसे पहली बात जो होती है 1980s में, अर्ली 1980s में बहुत सारे स्कॉलर्स एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं टू अरेस्ट द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ, टू आइडेंटिफाई द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द फील्ड एंड टू गिव अ फ्रेश लुक, टू गिव इट अ फ्रेश लुक। वो रीजंस ढूंढते हैं, डाउनफॉल क्यों हो रहा है, डिग्रेड क्यों हो रहा है, अब सॉल्यूशंस क्या है इन ऑर्डर टू राइज इट अगेन। तो ये जो स्कॉलर्स है जो ये स्टडी करते हैं रिवाइवल मूवमेंट में, इनमें जो टॉप पे रहते हैं फेरल हीडी रहते हैं, चार्ल्स गुडसेल आते हैं, या जॉर्गेस जुन आते हैं, या बाकी आते हैं, जो फेरल हीडी है वो सुपरहेड करता है ये रिसरेक्शन अटेम्प्ट, रिसरेक्शन नया उरूज, रिबर्थ का जो अटेम्प्ट है, रिसरेक्शन का जो अटेम्प्ट है उसको सुपरहेड करता है फेरल हीडी। तो जो रिवाइवल मूवमेंट है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट होता है 1980 के बाद, क्योंकि 1970s के बाद इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो, फॉर्ड फाउंडेशन रोकती है, इसका जो जर्नल है वो पब्लिश ही नहीं होता है, इसको डिसबैंड करके मर्ज किया जाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद इसका जो 1980s के दौरान फेरल हेडी की सरबराही में रिसरेक्शन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जहां तक रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इन 1973 में, जब पहले क्या हुआ था, ये मर्ज हुआ था, डिसबैंड होके मर्ज हुआ था। और जो सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी सीका जो थी, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, SICA, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, that was incorporated in the first section of अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसको 1973 में जो ये सिका आई थी, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इनकॉर्पोरेट किया था एज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, to promote the study of comparative public administration and international public administration। तो जो 1973 में ये दो चीजें आती हैं, वन है CPA, अनदर इज IPA, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो सीका आती है, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो इनकॉर्पोरेट हुई थी एज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन to promote the study and practice of comparative public administration। तो एक तो इसको प्रमोट करना है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और दूसरा इसको प्रमोट करना है किसका स्टडी, इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज अ रिवाइवल मूवमेंट। तो अनलाइक द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कंपैरिजन करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। जो इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी किसका, डील्स विद द स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तो CPA यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स का। लेकिन जो इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसका, इंटरनेशनल एजेंसीज का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस किनके, comparative study of the administrative operations of the comparative study of the administrative operations of the different international agencies। तो CPA comparative public administration में हम different nations का culture ये क्रॉस स्टडी करते हैं। लेकिन जो IPA है इसमें हम करते हैं इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यहाँ पर देखते हैं। तो वहां पर नेशंस का देखते हैं, इंटरनेशनल में हम एजेंसीज का देखते हैं। बट जो चाहे CPA की बात हो या IPA की बात हो, बोथ वर अनेबल टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क ऑन पैराडिग्म फॉर एनालिसिस। लेकिन ये दोनों भी कामयाब नहीं हुए हैं।
तो जो फेरल हिडी है उन्होंने सजेस्ट किया था कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू सब फील्ड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। उन्होंने इन दोनों के लिए क्या किया था, उन्होंने बोला था इनको हम कन्वर्ज करें, इनको हम दोनों को मिलाएं, इन दोनों को हम मिलाएं इन ऑर्डर टू जो है वी विल कन्वर्ज बोथ दीज वेरी थिंग्स, चाहे वो सीपीए है या आईपीए है, वी विल कन्वर्ज बोथ ऑफ दीज सब फील्ड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू फेरल हिडी, उन्होंने जब इनको कन्वर्ज किया, सीपीए एंड आईपीए वर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर, क्योंकि दोनों एम करते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडी पे। अब डिफरेंस कहाँ है, बट बोथ अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑन सिंगल नेशन एंड बोथ हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स। लेकिन एक ही नेशन या एक ही एजेंसी पे किसी ने भी फोकस नहीं किया, चाहे वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। तो आगे उन्होंने बताया ही फर्दर सजेस्टेड जो सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, इट शुड मेक ब्रिंगिंग दीज टू सब फील्ड्स टुगेदर अ मेजर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। जो सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट शुड मेक ब्रिंगिंग दीज टू सब फील्ड्स टुगेदर। उनको ये सेक्शंस जो है इनको ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे कंपैरेटिव हो या इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन दोनों को एक साथ लाए, इन दोनों को एक साथ लाए एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। तो ही वीव जो ये प्रोसेस है, जो फेरल हिडी की ये प्रोसेस रही है कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें डिफरेंस है। ये दोनों स्टडी करते हैं अपने अपने फील्ड में, नेशंस और एजेंसीज को। तो जब हम इनको कन्वर्जेंस करेंगे, तो हम ये फाउंड भी करेंगे कि ये एक नेशन या एक एजेंसी पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ये क्रॉस स्टडी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये सजेस्ट करता है जो सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, SICA, सी का जो था, इट शुड बी ब्रिंगिंग, सी का में क्या करना चाहिए, इट शुड मेक ब्रिंगिंग दीज टू, सीका को ये करना चाहे जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट शुड ब्रिंग दीज टू फील्ड्स टुगेदर as a major program objective in order to revive the comparative public administration, तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बता दिया, सीपीए और आईपीए का रोल रहता है, और सीपीए और आईपीए का रोल तब कारगर हो सकता है जब सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों सब फील्ड्स को एक साथ लेंगे, तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो रहते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो फेरल हिडी है उन्होंने रिवील किया कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स विल ब्रिंग मोर प्रोमिनेंट, कंपैरेटिव जो प्रोस्पेक्ट्स है, चाहे वो सीपीए है या आईपीए है, इट विल ब्रिंग मोर प्रोमिनेंट जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोर प्रोमिनेंट जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग करेगी बाय वाइडनिंग द हॉरिजॉन्स ऑफ इंटरेस्ट, इन सच अ वे दैट अंडरस्टैंड्स वन नेशन, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन नेशनल इंटरेस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एक नेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, विल बी एनहांस्ड बाय प्लेसिंग इन अ क्रॉस कल्चरल सेटिंग। तो फेरल हिडी ने बता दिया जो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, जो जब हम इनका सीपीए और आईपीए को एक साथ लाएंगे, सब फील्ड में, सीका के सब फील्ड में एक साथ लाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मोर प्रोमिनेंट, मोर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कैसे, इससे वाइडन हो जाएगा, इंटरेस्ट या स्कोप जो है वो डीप हो जाएगा। इन सच वे, कैसे, जो एक नेशन का एक अच्छा फीचर है, एक नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक अच्छा फीचर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन नेशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस नेशन का जो अच्छा फीचर है, उस नेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, दैट विल बी एनहांस्ड बाय प्लेसिंग, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे बाय प्लेसिंग इट इन अ सब कल्चरल सेटिंग। तो एक नेशन का अच्छा फीचर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हम उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, हम इसको क्रॉस कल्चरल सेटिंग में यूटिलाइज करेंगे, इन ऑर्डर टू ब्रिंग सेम चेंजेस इन अदर नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। तो वो जो स्पेशल फीचर होगा, जब वो एक नेशन में बड़ी डिफरेंस लाता है, बड़ी मतलब तरक्की, ग्रोथ, स्कोप देता है, उसी फीचर को हम क्रॉस कल्चरल स्टेट में यूटिलाइज करके बाकी नेशनल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी एनहेंसमेंट देखेंगे, चेंजेस देखेंगे। तो इस वजह से जो स्कोप था, जो रिवाइवल हो रही थी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकॉर्डिंग टू फेरल हिडी। So this was all about this comparative approach to the study of public administration. Even it was not necessary for us to study the revival movement and its decline, but for your kind information, for more knowledge, I try to deliver these very things as well. And tomorrow we will study about
जो फ्रेडरिक्स की जो कंपैरेटिव थ्योरी आती है वो तो हमने नहीं पढ़नी है, बट स्टिल वी विल फोकस ऑन दैट बिकॉज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।